بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں کے بعد آج اب آپ حضرات کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج ہم تاریخ اسلام کی ایک عظیم شخصیت حضرت سیدنا علی بن حسین المعروف بہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ جس روز ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد کو ذلت آمیز انداز میں موت کے گھاٹ اتار دیا، اس روز اس کے تمام جرنیل، حفاظتی دستہ اور اہل خانہ مسلمانوں کے ہاتھ قیدی بن گئے اور مال غنیمت کو سمیٹ کر مدینہ لایا گیا۔ اس عظیم فتح کے موقع پر جس قصیر تعداد میں قیدی مدینہ منورہ لائے گئے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ان قیدیوں میں ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد کی 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ لوگ قیدیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے پلک جھپکتے ہی انہیں خرید لیا اور رقم بیت المال میں جمع کرا دی۔ صرف ایران کے بادشاہ یزدگرد کی 3 بیٹیاں باقی رہ گئیں۔ وہ بلا صبح حسن و جمال کا پیکر تھیں۔ جب انہیں فروخت کے لیے پیش کیا گیا تو مارے ذلت و رسوائی کی ان کی آنکھیں زمین میں گڑ گئیں۔ حسرت و یاس اور انکساری اور درماندگی کی وجہ سے ان کی غزالی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور انہیں دیکھ کر حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے دل میں ترس آ گیا اور یہ خیال آیا کہ انہیں وہ شخص خریدے جو ان سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس میں حیران ہونے کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، شکست خوردہ قوم کے معزز افراد پر ترس کھایا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، بادشاہ کی بیٹیوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ سچ کہتے ہیں، لیکن اس کی کیا صورت ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک تو ان کی قیمت زیادہ لگائیے اور دوسرا ان کو اختیار دے دے، جس پر یہ راضی ہو جائیں ان کے ہاتھ انہیں دے دیا جائے اور ان پر قطعاً کوئی جبر نہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز کو نافذ کر دیا۔ ان میں سے ایک نے حضرت عبداللہ بن عمر کو پسند کیا، دوسری نے حضرت محمد بن ابو بکر صدیق کو، اور تیسری جو حسن و جمال میں سب سے زیادہ خوبصورت اور ملکہ خواتین کہا جاتا تھا، اس نے اپنے لیے نواسے رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں ملکہ خواتین نے اپنے دلی رغبت سے اسلام قبول کر لیا، یہ دین قیم کی راہ پر گامزن ہوئیں۔ غلامی سے آزاد ہو کر، کنیز سے آزاد ہو کر بیوی کا باعزت مقام حاصل کیا۔ پھر اس نے سوچا کہ ماضی کے تمام شرکیہ یادیں یکسر بھلا دی جائیں اور اس نے اپنا نام شاہ زندہ سے بدل کر غزالہ رکھ لیا۔ غزالہ کے نصیب میں بہترین رفیق حیات آیا، بڑی خوشگوار زندگی بسر ہونے لگی۔ مہینے لمحوں میں گزرنے لگے۔ اب ایک ہی دلی خواہش باقی رہ گئی کہ اسے چاند سا بیٹا نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی۔ ایک خوبصورت بچے نے جنم لیا۔ برکت کے لیے اس کا نام دادا کے نام پر علی رکھا گیا، لیکن غزالہ کے لیے خوشی چند لمحات سے زیادہ دیکھنا نصیب نہ ہوا، کیونکہ اپنے بیٹے کو جنم دیتے ہوئے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس نومولود کی پرورش اور نگہداشت ایک کنیز کے سپرد کر دی گئی، جس نے اسے ماں جیسا پیار دیا۔ اس نے اس پر اپنی محبت کو اس طرح نشاور کیا جس طرح کوئی ماں اپنے اکلوتے بیٹے پر پیار کرتی ہے، اور اس کو اس طرح پرورش کی کہ یہ مولود بڑا ہو کر اسے ہی اپنی حقیقی ماں سمجھنے لگا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سن شعور کو پہنچے تو حصول علم کی طرف شوق اور رغبت سے متوجہ ہوئے۔ پہلا مدرسہ گھر ہی تھا، اور یہ کتنا اچھا مدرسہ تھا۔ پہلے استاد ان کے والد حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ کتنے عظیم استاد تھے۔ دوسرا مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھا۔ مسجد نبوی میں ان دنوں صحابہ کرام اور تابعین اعظام کی چہل پہل تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین اعظام بڑی ہی دلی رغبت کے ساتھ ان پھول جیسے نونہال بیٹوں کو کتاب الہی پڑھایا کرتے تھے اور اس میں غور و تدبر کی تلقین کرتے، حدیث رسول ان کے سامنے بیان کرتے اور اس کے مقاصد سمجھاتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور غزوات کے واقعات بیان کرتے، مختلف شعراء کے اشعار پڑھ کر سناتے، پھر ان کے مطالب بیان کرتے اور ان کے دلوں میں حب الہی، خشیت الہی اور تقوی کی جوت لگاتے۔ اسی طرح یہ نونہال باعمل علماء اور باکردار رہنما بن کر ابھرتے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں قرآنی علم نے گھر کر لیا، اس کے سوا کسی اور علم کی طرف دل راغب بھی نہ ہوا۔ قرآن مجید کے وعدہ اور وعید کی وجہ سے ان کے احساسات میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ جب قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں جنت کا تذکرہ ہوتا تو دل شوق و رغبت سے اس کے حصول کا متمنی ہوتا، اور جب قرآن مجید کی ایسی آیت پڑھتے جس میں جہنم کا تذکرہ ہوتا تو ایک گرم اور لمبی سانس لیتے۔ انہیں یوں محسوس ہوتا جیسے جہنم کی آگ کا دہکتا ہوا شعلہ ان کے دامن میں اتر آیا ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی
और इल्म के नुक्ता अरूज पर पहुंचे तो मदनी मुआशरा के एक ऐसा नौजवान मिला जो बनु हाशिम के जवानों में इबादत और तकवा में मिसाली शान रखने वाला, फजल शर्फ और इखलाक व किरदार में सबसे बढ़कर नेकी मुर्दबारी में सबसे आला मकाम पर फायज। उनकी इबादत और तकवा का ये हाल था कि वुज़ू और नमाज के दरमियान उनके बदन पर कपकपी तारी हो जाती और उनका जिस्म मुसलसल रेशे की जद में आ जाता, और इस सिलसिले में उनसे बात की जाती तो फरमाते, तुम पर बड़ा अफसोस है, क्या तुम जानते नहीं कि मैं किसके सामने खड़ा होने वाला हूँ? क्या तुम जानते नहीं कि किसके साथ सरगोशी करने का इरादा रखता हूँ? इस हाशमी नौजवान की नेकी, तकवा और इबादत गुजारी से मुतासिर होकर लोगों ने उसे ज़ैनुल आबिदीन के नाम से पुकारना शुरू कर दिया और आप इसी नाम से मशहूर हो गए, यहाँ तक कि लोग उनके असल नाम को भूल गए। गर्ज ये कि लक़ब असली नाम पर गालिब आ गया। उनकी संजीदा रेज़ी और नमाज के दौरान दुनिया की बेनियाजी की वजह से अहले मदीना ने उन्हें फनाफिस सुजूद का लक़ब दे दिया। उनके बातिन की सफाई, उनके दिल की पाकीज़गी की वजह से लोगों ने उन्हें पाकबाज और पाकतीनत शख्सियत करार दे दिया। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह को इस बात पर यकीन था कि इबादत का मक़सद दुआ है। वो काबा शरीफ के पर्दे से चिमट कर घंटों अपने रब की बारगाह में दुआएं करते। बैतुल्लाह के साथ कितनी ही मर्तबा चिमट कर उन्होंने ये दुआ की कि परवरदिगार, तूने बेबाया रहमत मुझ पर निशावर की, मुझ पर इनाम व इकराम की बेइंतहा बारिश की। मैं बिला खौफ व खतर तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ। मोहब्बत व उल्फत की बिना पर तुझसे सवाली हूँ। तेरी बारगाह से मजीद रहमत का मुल्तजी हूँ। तेरे हकूक की अदायगी के लिए हिम्मत व ताकत की इल्तिजा है। इलाही, मैं तुझसे इस बेचारे गहरे पानी में डूबने वाले की मानिंद मांगता हूँ जिसे किनारे लगने के लिए तेरे सिवा कोई सहारा नजर न आता हूँ। इलाही, करम फरमा और मेरी जिंदगी की मंझधार में फंसी हुई नाव को किनारे लगा दे। बिलाशुबा तू सबसे बढ़कर अपनी मखलूक पर करम करने वाला है। हजरत ताउस बिन कैसान रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा देखा कि ये बैतुल्लाह के साए में खड़े मुस्तरब शख्स की तरह पेच उताब खा रहे हैं, सख्त बीमार की तरह कुर्राह रहे हैं, मोहताज की तरह दुआ कर रहे हैं। हजरत ताउस बिन कैसान खड़े इंतजार कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने रोना बंद कर दिया। दुआ से फारिग हुए तो हजरत ताउस बिन कैसान ने उनसे कहा, ए अल्लाह के रसूल के नवासे, मैंने आज तेरी हालत देखी है। तुझ में 3 खूबियां ऐसी पाई जाती हैं जो तुझे खौफ से बचा लेंगी। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा, ए ताउस, वो कौन सी खूबियां हैं? आपने फरमाया, एक तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, दूसरे आप अपने नाना की शफाअत हासिल होगी, और तीसरे अल्लाह ताला की रहमत आपकी शामिल हाल होगी। उन्होंने फरमाया कि ताउस, कुरान मजीद की दरजील आयत सुनने के बाद मैं समझता हूँ कि मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतसाब कुछ भी फ़ायदा न देगा। चुनांचे अल्लाह का इरशाद है, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। तो जब सूर फूंका जाएगा तो उस दिन उनके दरमियान कोई हस्ब व नसब काम न आएगा और ना एक दूसरे को पूछेंगे। जहाँ तक मेरे नाना की शफात का ताल्लुक है, अल्लाह ताला का इरशाद मेरे पेश नज़र है, वला यशफ़ऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा, किसी की सिफारिश नहीं करते बजुज़ उसके जिसके हक में सिफारिश सुनने पर अल्लाह राजी हो। और जहाँ तक अल्लाह ताला की रहमत का ताल्लुक है, इस सिलसिले में इरशाद रब्बानी है, इन्ना रहमतुल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत नेक किरदार लोगों से करीब है। तकवा और खौफ खुदा ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन में बहुत सी खूबियाँ पैदा कर दी। फजल शर्फ और नरमी और बुरदगबारी के खूगर थे। उनके मिसाली औसाफ के दिल पजीर तस्करों से सीरत की किताबें मुज़य्यन हैं और तारीख के सफ़हात आज भी चमक रहे हैं। हसन बिन हसन रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मेरे और मेरे चचाजाद भाई हजरत ज़ैनुल आबिदीन के दरमियान एक मरतबा इख्तलाफ पैदा हो गया। मैं उनके पास गया, वो मस्जिद में अपने साथियों के हमरा बैठे हुए थे। गुस्से में आकर मैंने जो मुंह में आया कह दिया, लेकिन वो मेरी कड़वी कसीली बातें खामोशी से सुनते रहे और मुझे कोई जवाब न दिया। मैं गुस्से का भरपूर इजहार करके चला गया। रात को मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ये देखने के लिए उठा कि उस वक्त मेरे दरवाजे पर कौन हो सकता है। मैंने देखा कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन खड़े हैं। मुझे इस बात में कोई शक न रहा कि ये अब अपना बदला लेने आए हैं, लेकिन उन्होंने फरमाया कि मेरे भाई, आज सुबह जो आपने मेरे बारे में कहा, अगर इसमें आप सच्चे हैं तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दें, और अगर आप इन बातों में सच्चे नहीं हैं तो अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे। ये कहा, मुझे सलाम किया और वापस चले गए। मैंने उन्हें रोका और अर्ज़ किया कि आइंदा मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो आपको नागवार गुजरे। भाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। उनका दिल नरम हो गया और फरमाया कि कोई बात नहीं, मेरे बारे में आपको बात करने का हक पहुँचता है। मदीना मुनव्वरा का एक बाशिंदा बयान करता है कि एक मरतबा हजरत ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद से बाहर निकले और मैं भी उनके पीछे हो लिया। मैं बगैर किसी वजह के उन्हें गालियां देने लगा। लोग ये सुनकर मुझ पर पल पड़े। मुझे अपनी जान के लाले पड़ गए। करीब था कि वो मुझे मार डालते। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने लोगों की तरफ देखा और फरमाया, रुक जाओ,
तो वो लोग सब लोग रुक गए। जब आपने मुझे कांपते हुए देखा तो बड़ी खंदा पेशानी से मेरी तरफ को तवज्जे हुए, मुझे दिलासा देने लगे ताकि मेरा खौफ जाता रहे। फिर आपने फरमाया कि आपने मुझे अपनी मालूमात के मुताबिक गाली दी, लेकिन वो ऐब जिन पर पर्दा पड़ा हुआ है आप नहीं जानते, वो तो कहीं ज्यादा है। फिर मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी कोई ऐसी ज़रूरत है जिसे पूरा करके हम तुम्हारी मदद कर सकें? मैं शर्मिंदा हुआ और कुछ न कह सका। जब उन्होंने मेरी शर्मसारी देखी तो अपनी कीमती चादर उतार कर मुझ पर डाल दी और 1000 दिरहम मुझे इनायत किए। एक गुलाम कहते हैं कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मैं गुलाम था। उन्होंने मुझे किसी काम के लिए भेजा, मैंने ताख़ीर कर दी। जब मैं उनके पास आया तो बड़े गुस्से से कोड़ा पकड़ा और मेरी पिटाई शुरू कर दी। मैं रोने लगा, मुझे गुस्सा भी बहुत आया। आपने इससे पहले कभी किसी को मारा भी नहीं था। मैंने कहा, ए अली बिन हुसैन, अल्लाह से डरें। एक तो आप मुझसे खिदमत लेते हैं, मैं आपके हुक्म के मुताबिक हर काम पूरी मेहनत से करता हूँ, ऊपर से आप मेरी पिटाई करते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? मेरी बात सुनकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो पड़े और फरमाया कि अभी मस्जिद नबवी में जाओ, 2 रकत नमाज पढ़ो, फिर ये दुआ करो, इलाही अली बिन हुसैन को माफ़ कर दे। अगर आज आप ये करेंगे तो तुम मेरी गुलामी से अब आज़ाद हो जाएगी। मैं मस्जिद गया, नमाज पढ़ी और दुआ की। जब मैं घर वापस लौटा तो मैं आज़ाद था। अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन पर बड़ी वाफिर मिक़दार में माल व दौलत और रिज़्क़ के दरवाजे खोल रखे थे। तिजारत में इन्हें बहुत नफ़ा होता था, ज़राअत में भी बड़ी फरावानी मुयस्सर थी। ये दोनों काम आपके नौकर चाकर सर अंजाम दिया करते। ज़राअत और तिजारत के ज़रिए वाफिर मिक़दार में माल व दौलत उनके हाथ लगता, लेकिन इस तवंगरी और फरावानी ने इनके अंदर नखुव्वत या तकब्बुर का कोई शाइबा पैदा नहीं किया। अलबत्ता दुनिया के माल को उन्होंने आखिरत की कामयाबी का जरिया बनाया। उनकी दौलत और सरवत हर लिहाज से उनके लिए मुफीद कारआमद साबित हुई। राजदारी और पोशीदा अंदाज में सदका और खैरात करना उन्हें बहुत ज्यादा महबूब था। जब रात का अंधेरा छा जाता तो ये अपने कमर पर आटे के थैले उठाते और मदीने के उन जरूरतमंदों के घर चुपके से छोड़ आते जो खुददारी की वजह से लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं कर सकते थे। ये काम सरअंजाम देने के लिए रात की तारीकी में इस वक्त निकलते जब लोग सोए होते। मदीना मुनव्वरा में बहुत से घर खुशहाली से जिंदगी बसर कर रहे थे, जिन्हें यह भी पता नहीं था कि उनके पास वाफिर मिकदार में रिस्क कहाँ से आता है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन फौत हो गए और उन लोगों के पास आटा आना बंद हो गया। तब पता चला कि ये कहाँ से आता था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को गुस्ल देने के लिए जब तख्ता पर रखा गया, गुस्ल देने वालों ने पीठ पर स्याह निशान देखे तो कहने लगे, ये क्या है? उन्हें बताया कि ये आटे की बोरियां उठाने की वजह से निशान पड़ा है जो मदीने में तकरीबन 100 घरों में पहुंचाया करते थे। आज इस तरह फयाजी के साथ खर्च करने वाला दुनिया से रुखसत हो गया। एक मर्तबा का जिक्र है कि हशाम बिन अब्दुल मलिक हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा आया। उस वक्त वो वली अहद था। वो तवाफ करना और हजर अस्वद को चूमना चाहता था। हिफाजती दस्ते ने लोगों को हटो बचो करते हुए उसके लिए रास्ता बनाना शुरू किया, लेकिन लोगों में से एक शख्स ने उनकी तरफ देखा, किसी ने भी उसकी तरफ देखा नहीं और ना ही उसके लिए रास्ता बनाया, बल्कि वो ये कह रहा था, ये घर अल्लाह का है, तमाम लोग उसके बंदे हैं। इसी दौरान दूर से ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर की आवाज़ें सुनाई देने लगी। लोग टकटकी लगाकर उसकी तरफ देखने लगे। वो क्या देखते हैं कि लोगों के झुरमुट में एक खूबसूरत शरीर बदन और रोशन चेहरे वाला शख्स एहराम बांधे बड़े ही वक़ार के साथ बैतुल्लाह की जानिब चला आ रहा है। उसकी पेशानी पर सजदों का निशान नुमाया है। लोग अकीदत का इजहार करते हुए उसके लिए रास्ता बना रहे हैं और उसे मोहब्बत व अकीदत की नज़र से देख रहे हैं। वो शख्स हजर अस्वद तक पहुंचा और उसे बड़े ही बावकार अंदाज में चूमा। हिशाम बिन अब्दुल मलिक के हाशिया बरदारों में से एक शख्स ने उससे पूछा, ये कौन शख्स है जिसकी लोग इस अंदाज में ताज़ीम बजा ला रहे हैं? हिशाम ने कहा, मैं इसे नहीं जानता। दुनिया अरब का मशहूर शायर फरज़दक वहाँ मौजूद था। उसने कहा, अगर हिशाम इसको नहीं जानता तो क्या हुआ, मैं इसे जानता हूँ और तमाम दुनिया इसे जानती है। यह हज़रत हुसैन का फर्जंद अर्जुमंद अली है, जिसे लोग ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं। फिर बदजस्सा उसने कुछ अरबी अशार पढ़े जिनका तर्जुमा आपके सामने हम पेश करते हैं। ये वो शख्स है जिसके कदमों की आहट को वादी बतहा जानती है। बैतुल्ला भी इसको जानता है और हिल्लो हरम भी इसे जानते हैं। ये अल्लाह के बंदों में सबसे बेहतरीन इंसान का नवासा है। ये मुत्तकी, परहेजगार, पाक, साफ और मुमताज इंसान है। ये फातिमा ज़हरा का पोता है। अगर तू नहीं जानता तो सुन ले, इसके नाना खातमुल अंबिया है। तेरा ये कहना कि ये कौन है इसे कोई नुकसान नहीं देगा। तू इसे अगर नहीं जानता, अरब व अजम तो इसे जानते हैं। इसके दोनों हाथ बड़े फयाज हैं। लोग इसकी फयाजी से खूब मुस्तफीज होते हैं। ये नरम तबीयत है, इसमें तुरशरूई का शाइबा तक नहीं है। दो खूबियों ने इसको आरास्ता किया है। वह हुस्न अखलाक और नरम तबीयत है।
تشہد کے علاوہ اس کی زبان پر لا نہیں آتا، اگر تشہد نہ ہوتا تو یہ لا بھی نعم ہوتا۔ اس کے احسانات خلق خدا پر عام ہیں، جن کی وجہ سے تاریکیاں، غربت و افلاس ختم ہو گئے۔ جب قریش نے اسے دیکھا تو اس کا ایک شخص پکار اٹھا، یہ وہ شخص ہے جس پر حسن اخلاق ختم ہے، یہ حیا کی وجہ سے اپنی نگاہیں نیچی رکھتا ہے اور لوگ اس کی ہیبت سے نگاہیں جھکا لیتے ہیں۔ اس کی ہتھیلی ریشم کی طرح نرم ہے، اس سے کستوری کی سی خوشبو آتی ہے۔ اس کی ناک کھڑی ہے جس سے شخصی عظمت آشکارا ہوتی ہے۔ اس کا اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشتق ہوا ہے۔ اس کا حسب و نسب اس قدر عمدہ ہے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر اس شخص کے لیے نادر نمونہ تھے جو پوشیدہ اور علانیہ اللہ تعالی جل شانہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کے ثواب کا لالچ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا بچا کر رکھتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی مفصل حیات اور آپ کی سوانح حیات کو پڑھنے کے لیے طبقات ابن سعد، تاریخ بخاری، المعارف، المعرفہ والتاریخ، الجرح والتعدیل، طبقات الفقہاء، تاریخ ابن عساکر، الاسماء واللغات، وفیات الاعیان، تاریخ اسلام، العبر، البدایہ والنہایہ اور النجوم الظاہرہ، اس قسم کی کتابوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، جن کے اندر حضرت سیدنا علی بن حسین المعروف امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے تفصیلی حالات لکھے گئے ہیں۔ ہم نے اختصار کے ساتھ حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اخلاق اور ان کی عبادت گزاری کے واقعات آپ کے پیش نظر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں حضرت سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔